Hi everyone. So today we are going to interact with Neha, and she got couple of options here. She got selected in BARC, she got selected in NPCL, and she is waiting for her interview results in Gas Authority of India Limited, GAIL, and Engineers India Limited. And her interviews in EIL and all are very good. And also she is looking forward for IUCL and POSOCO, and DRDO has also come out with. So we had a detailed I had a detailed interaction with Neha. क्या इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे गए, हाउ बीआरसी इंटरव्यू इज डिफरेंट फ्रॉम EIL or public sectors. So NPCIL and BARC are the two organizations which are linked also, and interviews more or less on the same lines. Like in BARC she had interview for 1 hour 15 minutes, and NPCIL it was 40 minutes. EIL and GAIL are basically for 20 minutes. You know, they are PSUs. So kind of questions which are asked in research organizations are different from the questions which are asked in public sectors. Research organization mein focus is somewhere else on the basics, and they evolve the difficulty level. From very basic they start, and then they keep on increasing the difficulty level. So Neha has shared the actual questions which were asked to her. And in public sector also they ask you questions which are, you know, data based questions on the basis of what industry or practical industry questions they will ask you. So listen to this entire interaction, and I'm very sure you will get benefited by her rich experience of 4 main organizations in which she was asked the questions, and or 2 of these she has already converted, and 2 she is waiting for. So let's listen to what Neha is to tell us. Hi Neha, so first of all, congratulations for becoming a nuclear scientist in Bhabha Atomic Research Center. Thank you, sir. And you know, I must thank you for giving your time for this interaction, Neha. And we know this BARC is a very hard nut to crack in interview, because this is something which is, you know, 1 hour interview, and the scientists keep on asking. They check your creativity, they check your divergent thinking, convergent thinking, they check your in-depth knowledge about a particular field. So BARC interview is really good. That is we all know, and you've cracked that, and now you are selected candidate in that. So Neha, I want this interaction with you, in which I want to know about you. And in the process, many students over there who look forward to join Bhabha Atomic Research Center as you know, scientist, as a reputed job. So they will be looking forward to you for advice, for some kind of inputs, how you prepared for this and how was your interview. We'll be discussing about that only. So I start with your background. Please tell us about you, which part of India you are, and when did you graduate, and after graduation till today, what were you doing? I mean, you were only preparing for competitive exams, you had some exams, you had some failures. So please share everything with us. सर मैं बेसिकली जयपुर राजस्थान से हूँ, और जो मेरा बीटेक है वो NIT कुरुक्षेत्र में हुआ था, और मैं 2021 पास आउट बैच से हूँ। तो जब 21 के बाद जब पास आउट मैं हुई वहां से, तो उसके बाद मैंने 1 साल कंप्लीट डेडिकेशन के साथ गेट के लिए प्रिपेयर किया, और अभी जस्ट उसके रिजल्ट वगैरह बस वही चल रहे हैं। मैं अभी तक मतलब जॉब, ये फर्स्ट जॉब है मेरी, इससे पहले मेरा कोई जॉब एक्सपीरियंस नहीं है। आपकी ग्रेजुएशन कब हुई थी नेहा? 2021। ओके, सो फिर आपने कौन गेट एग्जाम वगैरह भी लिखा था आपने? हाँ सर, फाइनल ईयर में मैंने गेट लिखा था, लेकिन उसमें मेरे रैंक और मार्क्स वगैरह इतना अच्छा नहीं था, तो मुझे दोबारा से प्रिपेयर करना ही था, तो मैंने इसलिए 1 साल का ड्रॉप किया और सेल्फ प्रिपेयर किया, उसके बाद फिर दोबारा से गेट दिया। तो आपका फिर गेट के थ्रू आपने कहीं हायर एजुकेशन वगैरह के लिए अप्लाई किया, या कहीं पे आपने सिलेक्शन लिया या नहीं? सर हायर एजुकेशन का मेरा मतलब मुझे करना था, लेकिन एमटेक जो होता है, जो IITs के थ्रू होता है, उससे मुझे नहीं करना था। बेसिकली जो BARC में मिलता है, वहाँ पे स्टाइपेंड वगैरह और भी अदर बेनिफिट्स होते हैं। एक जॉब का एक तरह से रहता है कि हाँ जॉब हमारे पास है, तो मुझे उस तरह के बेनिफिट्स में ज्यादा इंटरेस्टेड था, मतलब इंटरेस्टेड हूँ मैं, तो उसी में मैं जाना चाहती थी। तो अभी फाइनली सिलेक्शन भी हो चुका है उसका। BARC में 2 तरह से आप इंटरव्यू में जा सकते हैं, एक तो गेट के थ्रू और एक अपने एग्जाम के थ्रू। आप कौन से चैनल के थ्रू नेहा गई थी वहां पे?
सर मेरा गेट के थ्रू ही हुआ था, बट मैंने एग्जाम भी दिया था। एग्जाम में मेरे मार्क्स कम रह गए थे, अराउंड 10 to 15 मार्क्स कम रह गए थे सिलेक्शन से। तो मेरा फाइनली गेट में रैंक 95 था। तो वहां से जो गेट स्कोर 846 था और कट ऑफ था 833। तो वहां से मेरा फिर डायरेक्ट सिलेक्शन हुआ इंटरव्यू के लिए। आपकी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड क्या है नेहा? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सर। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के इलेक्ट थ्रू आपने गेट के थ्रू आपने अप्लाई किया था? जी बिल्कुल। यस किस किस रैंक तक आपको लगता है कॉल्स वॉल्स आ जाता होगा बीएआरसी में विद इलेक्ट्रिकल? सर मेरे हिसाब से अराउंड 130 140 तक आया है इस बार कॉल। तो इतना ही रहता है जहां तक है। और कट ऑफ जैसा मैं बता रही हूँ, गेट स्कोर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गेट स्कोर के हिसाब से ही वो लेते हैं, उन्हें रैंक इतना ज्यादा वो मैटर नहीं करते। तो गेट स्कोर जैसे इस बार 833 गया, तो इसी के 10 to 20 अराउंड इतना हम मान सकते हैं, मार्जिन ले सकते हैं कि इतना रहता है। अच्छा, ये जो रिटन एग्जाम है नेहा, ये कैसे डिफरेंट है जो बीएआरसी का है गेट से? सर डिफरेंट तो ज्यादा मैं नहीं कहूंगी, बट ये है कि इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट वगैरह ज्यादा चेक होते हैं। और जैसे गेट में सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन आते हैं, वैसा बीएआरसी में नहीं है। इसमें कुछ ही 4-5 सब्जेक्ट होते हैं, वहीं से क्वेश्चन आएंगे। और थोड़ा लेवल भी उनका ज्यादा होगा गेट से। तो हाँ, मैं कंपैरेटिवली गेट से तो वो थोड़ा डिफिकल्ट है, इतना तो रहता ही है। तो उसे क्रैक करना ज्यादा मुश्किल है मेरे हिसाब से। मैंने मतलब दोनों दी हिसाब से। गेट के थ्रू जाना ज्यादा आसान है एज पर यू? गेट पे हाँ, बस ये है कि हमें रैंक बहुत ज्यादा हाई लाना पड़ेगा। और गेट में लक बहुत ज्यादा मैटर करता है काफी बार। मतलब स्कोर अच्छा होता है बट रैंक नहीं आती है, तो वही सब चीजें हैं सर। तो एक तरह से मतलब दोनों ही काफी इम्पोर्टेंट चैनल है जाने के लिए। अच्छा, ये अभी क्योंकि आपका रैंक अच्छा है गेट में आपने बताया, तो आपको तो और भी ऑप्शंस नेहा आपके पास आएंगे अभी अदर देन बीएआरसी, लेट्स से मे बी पीएसयू एंड ऑल। तो आप एक्सप्लोर हाँ नहीं सर, करना चाहेंगे? मैंने अभी दिया था इंटरव्यू। मैंने ईआईएल का भी दिया है और गेल का भी दिया है। और इसके अलावा एनपीसीएल में भी मेरा सिलेक्शन हुआ था इसके साथ ही। पर मैं चूज बीएआर से कर रही हूँ। और ईआईएल और गेल का अभी तक रिजल्ट आया नहीं है, तो अभी तक के लिए तो बीएआरसी बेस्ट ऑप्शन है मेरे लिए। तो अभी तो मैं इसी में ज्वाइन। तो मतलब आप ऑलरेडी इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और गेल का इंटरव्यू दे चुकी हैं? हाँ, ऑलरेडी मैं दे चुकी हूँ। ओके ओके। अच्छा नेहा, अब ये जो बीएआरसी है ना, ये बहुत अच्छा इंटरव्यू माना जाता है, डेप्थ में होता है इंटरव्यू। आई रिक्वेस्ट यू कि आप इसका थोड़ा सा डिटेल में शेयर करें सारे स्टूडेंट्स जो सुन रहे हैं आपको, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस बीएआरसी में पूछे जाते हैं इन योर फील्ड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। बीआरसी में था कि सबसे पहले मैं तो गई वहां पे, तो मतलब थोड़ा वो उनका हमेशा से रहता है कि वो थोड़ा स्ट्रेस से थोड़ा कम करने की कोशिश करते हैं। उन्हें ये पहले से आइडिया होता है कि जो भी कैंडिडेट यहाँ आ रहा है वो ऑलरेडी बहुत स्ट्रेसफुल माइंड से आ रहा होगा। तो एक दो क्वेश्चन तो वो लोकेशन से ऐसे कुछ पूछते हैं जो कि सबसे पूछे, बट अगर उन्हें लग रहा है कि हाँ वो स्ट्रेस शो कर रहे हैं तो वो पूछते हैं। तो मुझसे उन्होंने पूछा कि कहाँ से हो, तो मैंने बताया कि हाँ जयपुर से हूँ। उसके बाद फिर मतलब मेरा ऐसा था कि मैं कंफर्टेबल हो गई थी, इतना ज्यादा मुझे टाइम नहीं लगा वहां पे। तो उन्होंने फिर स्टार्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि आपके फेवरेट सब्जेक्ट बताओ, तो मैंने 5 बताए थे। मैंने बताया था इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम और नेटवर्क थ्योरी और कंट्रोल सिस्टम और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। पर जो 5th वाला सब्जेक्ट था उससे उन्होंने सब्जेक्ट मतलब क्वेश्चंस नहीं पूछे मुझसे। जो बेसिकली 4 थे, स्टार्टिंग के 4 थे, उन्हीं से क्वेश्चंस आए मेरे पास। तो पहला जो था पावर सिस्टम से क्वेश्चन मेरे पास था। मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस भी वही था। वो पूछते हैं कि आपका ऑर्डर भी यही है क्या, तो मेरा फर्स्ट पावर सिस्टम था। उससे उन्होंने मुझसे पूछा कि जो स्टेबिलिटी होती है, हमारे एक चैप्टर होता है पूरा, उसके बारे में आप क्या समझते हैं। तो मैंने बेसिक डेफिनेशन बताया। फिर डेफिनेशन के बाद वो ऐसे धीरे धीरे कोशिश करते हैं और डेप्थ में जाने की। तो उन्होंने कहा कि आप पूरा एक्सप्लेन करो, अगर कोई फॉल्ट होता है तो उसके बाद कैसे मशीन स्टेबल रहेगी, प्री फॉल्ट, ड्यूरिंग फॉल्ट एंड पोस्ट फॉल्ट कंडीशन, सारा एक ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन करना था। ब्लैक बोर्ड का वहां पे सिस्टम था, तो मैं ब्लैक बोर्ड पे गई वहां पे और सारा एक्सप्लेन किया। करीब 15 से 20 मिनट उस टॉपिक में ही चले गए मेरे, क्योंकि बीच में वो क्रॉस क्वेश्चन भी करते रहते हैं कि ये चीज क्या है, ये वहां से क्यों आया, ये डेरिवेशन वहां से क्यों आया। हर एक चीज का वो एक्सप्लेनेशन वो मांगते ही है। और अगर वो ना भी पूछे तो हमें आगे से बता दे तो वो बेटर ही है हमारे लिए, क्योंकि वो सही रहता है अगर हम बताते हुए चले कि हम क्या कर रहे हैं। और ये 15-20 मिनट यहाँ से खत्म हुए। फिर उसके बाद मेरा नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ इलेक्ट्रिकल मशीन।
इलेक्ट्रिकल मशीन के बाद उन्होंने पूछा कि अगेन आपका फेवरेट टॉपिक क्या है, तो मैंने बता दिया कि ट्रांसफार्मर। और बेसिकली वहां पे ट्रांसफार्मर पे ज्यादा काम होता है, तो मैं इस सजेस्ट यही करूंगी कि अगर ट्रांसफार्मर प्रिपेयर अच्छे से कर रखा है तो यही बोले वहां पे। तो ट्रांसफार्मर जब स्टार्ट हुआ तो बेसिक प्रिंसिपल पूछा उन्होंने, फिर पूरा वही सब वर्किंग जो डायग्राम वगैरह सब समझाने होते हैं। मैंने जहां तक फिर सुना क्रॉस है नेहा, क्वेश्चन। नेहा जहां तक मैंने सुना यस। है कि वो आपको सब्जेक्ट्स पूछने के बाद बोलते हैं बोर्ड पे चले जाओ, जैसे बोर्ड है वहां चले जाओ, और हाँ उसके बाद फिर आपसे एक एक करके डेप्थ में चलते जाते हैं। तो बिल्कुल अगर वो आप, चलता है। अगर आप उसी तरीके से हमें बता पाए देन इट विल वेरी यूजफुल। कि ये पहला क्वेश्चन था, उसके बाद इस तरीके से उन्होंने पूछा, क्योंकि उससे हमें ना ये पता लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन इवॉल्व करवाते हैं वो। ओके। जैसे मैंने स्टेबिलिटी का पहले बताया कि जो मुझे ग्राफ बनाना था, वहां पे ग्राफ में उन्होंने ये पूछा कि जो आपने एक्स एक्सिस पे जो ड्रॉ किया है इसका क्या है, जो डेल्टा है वो बेसिकली क्या है, तो मैंने बताया कि टॉर्क एंगल है। फिर उसके बाद वो समझ गए। उन्होंने कहा कि फिर स्विंग इक्वेशन लिखो स्टेबिलिटी की, मैंने वो लिखा। और उन्होंने कहा कि आप ठीक है अभी से एक्सप्लेन भी करो ग्राफ के थ्रू कि ये कहाँ यूटिलाइज हो रही है ग्राफ में। तो मैंने फिर टाइम लिया, 1 मिनट का मैंने हार्डली टाइम लिया होगा कि सर मैं सोच के बताती हूँ। फिर मैंने सोच के एक्सप्लेन किया वहां पे, तो पूरा जो प्रोसीजर था वो पूरा एक्सप्लेन किया। उसके बाद वो बीच बीच में जो भी मैं बोलती जा रही थी उसके ऊपर वो फिर दोबारा क्वेश्चन कर रहे थे कि ये आपने जो बोला ये क्यों बोला। जैसे अगर दोबारा से हमें सर्किट दोबारा से क्लोज करना है तो उसके बाद फिर से लोड आएगा, फिर लोड आएगा तो ग्राफ में क्या चेंजेस आएंगे, ये सब चीजें वहां पे एक्सप्लेन करनी थी। कुल मिला के यही है कि एक टॉपिक अगर चला तो कम से कम 8 to 10 क्वेश्चन तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो क्रॉस क्वेश्चन करेंगे ही करेंगे, इतना तो रहता ही है। और फिर उसके बाद जैसे ही वो इक्वल एरिया क्राइटेरिया मैंने समझाया, उसके बाद उन्होंने ये कहा कि ठीक है आप ये बताइए कि फेरेंटी इफेक्ट क्या होता है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में। तो मैंने कहा मैंने डेफिनेशन दी। फिर डेफिनेशन के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है डेफिनेशन तो आपने बता दी बट आप हमें समझाइए कि कैसे हो रहा है। तो मैंने जैसे ही वो ग्राफ ड्रॉ किया था उसके बाद वो शायद समझ गए थे कि ठीक है बेसिक डेरिवेशन इन्हें आता होगा, क्योंकि जो समझ जाते इतना कि हाँ ठीक है ये आता होगा। तो उसके बाद उनका ठीक है चलो हम सब्जेक्ट चेंज करते हैं। फिर इलेक्ट्रिकल मशीन पे वो गए और फिर ट्रांसफार्मर में जैसे मैंने बताया तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप एक वो बनाइए, कोर का डायग्राम बनाइए, वहां पे वाइंडिंग्स बनाइए और वहां पे पूरा जो समझाइए कि ट्रांसफार्मर बेसिकली काम कैसे कर रहा है। तो मैंने यही बताया कि वहां पे सप्लाई मैंने लगाई, वहां पे सप्लाई लगाने के बाद वहां पे फ्लक्स आया, फिर फ्लक्स से जो एमएमएफ बैलेंस वाला जो इक्वेशन रहता है वो वहां पे सेटिस्फाई कराना होता है। फिर वो सेटिस्फाई कराने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है आप इसे नो लोड पे ऑपरेट करवाइए और लोड के साथ ऑपरेट कराइए। उसके बाद में बताइए कि फ्लक्स में कोई चेंज आएंगे या नहीं आएंगे। तो मैंने कहा सर फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर का बेसिक प्रिंसिपल होता है कि फ्लक्स को वो कांस्टेंट रखता है, मतलब एसी फ्लक्स को वो कांस्टेंट रखता है आरएमएस वैल्यू। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। और उसके बाद उन्होंने फिर वो प्रैक्टिकलिटी में चलेगा कि ये अगर प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर हम ले तो इससे क्या क्या डिफरेंस आएंगे। और जो लेंज लो का जो लॉ है वो मुझे बताना था, उसकी इक्वेशन लिखनी थी। और ईएमएफ बैलेंस वाला जो है उसकी भी मुझे इक्वेशन लिखनी थी। फिर धीरे धीरे ट्रांसफार्मर का इतना वो समझ गए कि ठीक है बेसिक्स आते हैं। उसके बाद वो गए कि उन्होंने खुद से एक सर्किट बना लिया था एक सर ने, तब तक जब तक मैं एक्सप्लेन कर रही थी। फिर उन्होंने कहा कि ये आप बोर्ड पे ड्रॉ करो और उसके बाद मुझे ये बताओ कि वोल्टेज पर टर्न ये इसमें सेटिस्फाई होगा या नहीं। तो मैंने वो ड्रॉ किया, तो मैंने इंस्टेंटली बोल दिया, मैंने बिना सोचे कि सर यहाँ होगा, और मैंने इक्वल वोल्टेज वहां पे बता दिया कि 220 का सप्लाई लगाया तो 220 का ही वहां पे शो होगा। हालांकि वो मेरा बाद में गलत था, मतलब मैंने गलत बोला था। तो उन्होंने कहा ठीक है आप, फिर उन्होंने धीरे धीरे हिंट देना शुरू किया। मतलब ऐसे नहीं कि हम गलत बता दे तो वो छोड़ देंगे या नेगेटिव इंप्रेशन होगा, वो समझ जाते हैं कि ये इसने बिना दिमाग लगाए बोल दिया है, हमें इसे थोड़ा सा और एक्सप्लोर करना है। तो उन्होंने फिर मुझे फ्लक्स का बोला कि आप फ्लक्स की डायरेक्शन बताओ। तो मैंने फ्लक्स की डायरेक्शन बनानी स्टार्ट की। फिर मुझे क्लिक हुआ कि ये मैंने गलत बोला, पहले वाले के हिसाब से यहाँ नहीं हो रहा है, ये सूट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे फिर मैंने चेंज किया अपना आंसर कि सर, मैंने चेंज करने के साथ मैंने रीजन भी बताया कि सर मैं इसीलिए ये चेंज कर रही हूँ। तो उस चीज से जो नेगेटिव पहले हो सकता था वो काफी ज्यादा पॉजिटिव हो गया, मुझे ऐसा लगा, क्योंकि वो काफी खुश लग रहे थे कि मैंने वो हिंट उनका कैच कर लिया था कि वो जो बताना चाह रहे थे वो मैं समझ गई थी उसी टाइम पे। तो मशीन का तो ये काफी सही रहा। और फिर उन्होंने एक और क्वेश्चन मुझसे एक और मतलब प्रॉब्लम चेंज की, और उसमें ये कहा कि अगर इसमें हम डीसी हम सप्लाई लगा दे तो ट्रांसफार्मर में क्या चेंजेस आएंगे।
तो डीसी का तो जैसे हमने पढ़ रखा होता है, तो वही वाला वो क्वेश्चन था, थ्योरी बेस्ड था। तो वो मैंने बता दिया कि कोर सैचुरेट हो जाएगा, और सैचुरेट होने के बाद इसके अंदर जो कुछ हार्मोनिक्स भी आएंगे, और डीसी की वजह से ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, बट इस तरह से नॉन लीनियरिटी इसके अंदर आ जाएगी ट्रांसफार्मर में, इस तरह का कुछ रहेगा। फिर उन्होंने कहा ठीक है। इसके बाद ये टॉपिक खत्म हुआ, मतलब ये सब्जेक्ट से वो पूछना उन्होंने बंद कर दिया। फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट पे गए वो कंट्रोल सिस्टम पे। कंट्रोल सिस्टम पे अगेन उन्होंने सेम क्वेश्चन कि आपका फेवरेट टॉपिक क्या है और स्टेबिलिटी एनालिसिस आप कौन से मेथड से ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो मैंने बताया रूट लोकस। तो रूट लोकस उन्होंने कहा कि ठीक है। उन्होंने एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन मुझे दिया कि आप ये बनाओ और इसका रूट लोकस हमें बना के बताओ। तो जैसे ही मैं बना भी रही थी वहां पे, तो मैं हर एक स्टेप बाय स्टेप में एक्सप्लेन भी कर रही थी कि जो स्टेप 1 था वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। बेसिकली मोस्टली लोगों को क्या पता होता है कि वो रूट लोकस के रूल्स उन्होंने याद किए हुए होते हैं, उन्हें एक्सप्लेन नहीं करना आता कि ये कहाँ से आ रही है चीजें, क्यों हो रही है। तो मुझे जैसा मैंने बताया कि वहां पे एक्सप्लेन भी करना होता है, तो मैं जस्ट स्टेप बाय स्टेप में एक्सप्लेन भी कर रही थी। वहां पे सारे स्टेप मैंने एक्सप्लेन किए। उसके बाद वो समझ गए कि ठीक है। उन्होंने एक ही क्रॉस क्वेश्चन किया, उस पर ज्यादा क्वेश्चनिंग नहीं हुई, और एक ही क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि हम जो प्रोसेस जो प्लांट है उससे स्टेबल करने के लिए क्लोज लूप पोल की लोकेशन क्या लेंगे। तो वो मैंने अकॉर्डिंगली ग्राफ के अकॉर्डिंग बता दिया कि सर हम यहाँ पे लेंगे। तो ठीक है। फिर वो खत्म हो गया, फिर वो सब्जेक्ट से खत्म हो गया। फिर अगेन स्पीच करीब 45 मिनट्स मेरे हो गए थे, 45 से ज्यादा हो गए थे, 50 मान सकते हैं। फिर लास्ट वाला सब्जेक्ट हुआ नेटवर्क थ्योरी। नेटवर्क थ्योरी से एक मैम थी वहां पे, उन्होंने ऑलरेडी एक ट्रांसजेंड का जो क्वेश्चन है वो तैयार कर लिया था देने के लिए। तो वो मुझे दिया और उन्होंने कहा कि ठीक है आप इसे इसमें जो वोल्टेज है मतलब जैसे ही हम स्विच ओपन करेंगे तो वहां पे जो इंडक्टर पे जो वोल्टेज आ रही है वो मुझे बतानी थी, डिराइव करनी थी बेसिकली, और जो वोल्टेज चेंज हो रही है उसकी रेट भी मुझे बतानी थी। तो इस तरीके से पूरा जब मैं डेरिवेशन करने लगी तो मुझे ये रियलाइज हो गया था कि मैं मतलब मैंने अप्रोच गलत ली है, मैं सही नहीं कर रही हूँ। और मैम ने मुझे बीच में टोका कि मैंने आपको हिंट दिया है पर आप समझ नहीं पा रहे हो। फिर मैंने जस्ट स्माइल करके उन्हें कह दिया कि हाँ मैम मैंने गलत ले लिया, मैंने ऑनेस्टली एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ गलत हो गया है मुझसे। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, जो सर थे मतलब साथ में जो बैठे थे उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं आपका हो गया, आप जाओ मतलब। और फिर मेरा खत्म हो गया। मेरा चला था 1 hour 15 minute का लॉन्ग ड्यूरेशन इतना चल रहा था। तो उसके बाद फिर मैंने मतलब चौक डस्टर सब इरेज करके और फिर मैं वहां से फिर मतलब लंच हो गया था बेसिकली, तो फिर मेरा खत्म हो गया ऐसा। नेहा आपका 1 घंटा 15 मिनट चला होगा। हाँ जी बिल्कुल। तो आप कंफर्टेबल थे चला था अंदर? जल्दी तो नहीं आंसर कर रहे थे आप क्वेश्चंस का? आराम आराम नहीं से चल सर, रहा मेरी था? नहीं मेरी तरफ से तो बिल्कुल कोई जल्दी नहीं थी और उनकी तरफ से भी कोई जल्दी नहीं थी। बट जो जैसा मैंने बताया अभी कि जो लास्ट वाले सब्जेक्ट में मैं थोड़ा गलत कर गई थी, तो वहां पे मुझे थोड़ा स्ट्रेस होने लग गया था कि हाँ ये गलत हो गया है। पर वो ठीक है, उन्होंने मतलब अब तक का सही गया था तो वो ज्यादा माइंड नहीं किया उन्होंने। और फिर काफी चीजें वो और भी देखते हैं, शायद पता नहीं उन्होंने अप्रोच देखा हो या कुछ और देखा हो। तो वो समझ गए थे कि ठीक है इन्हें आता तो होगा बेसिक। और फिर मैं फिर खत्म हो गया जो था, मतलब जो ज्यादा उस पर ज्यादा। नेहा जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा था, जैसे सपोज उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा जो आपको नहीं आ रहा है, उस टाइम पे आप क्या करती थी? वहां पे आप सोचती थी क्वेश्चन का आंसर करने से पहले, या आप इमीडिएटली इनकार कर देती थी? हाउ यू यूज टू रिएक्ट टू द क्वेश्चन जो आपको नहीं आता था? सर बेसिकली ऐसा बहुत कम होता है कि हमें जो वो क्वेश्चन पूछते हैं वो हमें नहीं आता, क्योंकि वो स्टार्ट ही एकदम बेसिक से करते हैं कि कोई भी उसका आंसर दे ही सकता है। वो ओके, धीरे धीरे जब आगे बढ़ने लगते डिफिकल्टी हैं तब बढ़ाते हैं। जाके। हाँ बिल्कुल। और जब वो धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं तो हम खुद ही सोचने वाली कंडीशन में आ जाते हैं कि क्या हो सकता है क्या हो सकता है। तो 1 मिनट तो एटलीस्ट लेते ही लेते हैं कि हाँ आप सोच के बताएं कि हाँ क्या नहीं है। मेरे साथ ऐसी सिचुएशन नहीं हुई कि मुझे मना करना पड़े उन्हें। बट अगर ऐसा हो भी जाए तो जस्ट मतलब स्माइल रख के फेस पे ऑनेस्टली उन्हें कह दो। मतलब ये नहीं कि हम फंबल कर रहे हैं, हम इधर उधर की स्टोरी बना रहे हैं, तो वो इंस्टेंटली पकड़ लेंगे कि हाँ ये गलत हो रहा है। तो वहां पे वो पूरा नेगेटिव है। अच्छा, वो तो इनपुट भी रहता है। देते, हिंट भी देते रहते होंगे वो, कि ये आंसर हाँ भी कर सकते बिल्कुल हिंट देंगे। हैं। बिल्कुल वो हिंट देंगे, हर क्वेश्चन में वो हिंट देंगे और पूरा कॉपरेट भी करेंगे कि आप ऐसे ऐसे कर लो। बस वो यही चाहते हैं कि वो जैसे समझा रहे हैं वो हम समझ जाए, इतना वो एक्सपेक्ट करते हैं। हम्म। Yes. चलिए नेहा, दिस वाज वंडरफुल। अब आपने मेरे को बताया कि आपका एनपीसीआईएल में भी हो गया है,
सो एनपीसीआईएल भी न्यूक्लियर डोमेन से रिलेटेड है, वो न्यूक्लियर पावर प्लांट बेस्ड बॉडी है। और बीएआरसी जो है वो एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। और हमने सुना है कि दोनों में कॉमन, कई बार बीएआरसी के साइंटिस्ट एनपीसीआईएल के इंटरव्यू में भी जाते हैं, और जो एनपीसीआईएल है उसमें भी बीएआरसी की तरह से इंटरव्यू ही डिसिसिव होता है। 100% सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू होता है। और बीएआरसी आपने क्रैक किया, एनपीसीआईएल भी आपने क्रैक किया। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा नेहा, अगर आप हमें एनपीसीआईएल के इंटरव्यू के बारे में बता सकें कि वो कैसे डिफरेंट था, वो कितनी देर चला, एंड बीएआरसी के इंटरव्यू से वो कैसे अलग था? सर एनपीसीएल का मेरा चला था 40 मिनट्स के अराउंड, और वो डिफरेंट ये से था कि उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज्यादा इन्वॉल्व थे। पहले उन्होंने पूछा कि मेरा कोई जॉब एक्सपीरियंस नहीं था, तो मेरा उन्होंने पूछा कि आपका कोई ट्रेनिंग वगैरह है या नहीं है। तो मैंने उन्हें बताया कि हाँ मेरा ट्रेनिंग था EIL में, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। वहां पे फिर मेरा जो प्रोजेक्ट के बारे में था मैंने वो एक्सप्लेन किया कि वहां पे जो जनरेटर लगे हुए हैं वो कितने पे वोल्टेज पे जनरेट कर रहे हैं, उसका लोड कितना है। तो लोड बेसिकली उस टाइम पे मुझे पता नहीं था, क्योंकि पता ऐसे नहीं था क्योंकि उस टाइम पे वो डिजाइनिंग फेज में था। तो एग्जैक्ट लोड वहां पे नहीं बताया जा सकता था उस टाइम, मेरी ट्रेनिंग के टाइम। तो वो मैंने ऑनेस्टली कह दिया कि ये नहीं हुआ था डिसाइड उस पर। तो इनका ठीक है। और फिर उन्होंने ये कहा कि इंडस्ट्री में वोल्टेज कितने पे जनरेट होती है वो बताइए। तो मुझे एट दिस टाइम, उस टाइम पे मैंने पढ़ नहीं रखा था कि इतने पे होती है, बट मैंने जो ट्रेनिंग की हुई थी वहां से इंस्टेंट मतलब आइडिया लगाया कि इतने पे शायद होती होगी। तो मैंने ये कह दिया कि सर वहां पे 11 किलोवोल्ट पे हो रही थी। तो उनका चलो ठीक है। और फिर उसके बाद वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए कि सैग वगैरह, जो ट्रांसमिशन लाइन में जो सैग होता है वो कैसे आता है। तो मैंने सैग का एक बेसिक बता दिया। फिर बाद में मुझे ये टॉपिक ज्यादा, इसको लेके ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थी मैं, तो मैंने उन्हें कह दिया था कि सर ये मतलब इससे मतलब नहीं पूछे, इसमें मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट फील नहीं करती। उनका ठीक है। उन्होंने टॉपिक चेंज किया, और टॉपिक चेंज करके उन्होंने पूछा कोरोना लॉस के बारे में। तो कोरोना का मैंने एक्सप्लेन किया। उसके बाद ये कहा कि जो जनरेटर होते हैं वहां पे जो रोटेटिंग फ्लक्स होता है वो कैसे आता है, उसकी डेरिवेशन मुझे करनी थी। तो मैंने शॉर्ट में डेरिवेशन कर दी, स्टेप समझा दिए कि ऐसे ऐसे करना होता है। और एक ग्राफ भी बनाना था, तो वो भी, हालांकि ग्राफ उन्होंने कहा था कि आप इसे ग्राफ से एक्सप्लेन कीजिए, तो मैंने ग्राफ से एक्सप्लेन किया। उसके बाद ये थोड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे भी आया कि जो इंस्टॉलेशन लगी होती है उसकी क्लासेस क्या होती है। तो मुझे ये नहीं पता था, तो मैंने कह दिया कि सर ये नहीं आता मुझे। उनका ठीक है। और उसके बाद फिर बेसिक टाइप, जो ट्रांसफार्मर के जो ऑयल टाइप होता है और जो ड्राई एयर टाइप होता है उनमें क्या डिफरेंस होता है, बेसिक क्वेश्चन, मतलब डिटेल में वो नहीं जा रहे थे, जस्ट एक लाइन बोलनी थी उनका, मैंने वो बोल दी। उसके बाद फिर नेक्स्ट पे चेंज हुए। तो जैसा आप बता रहे हैं कि बाहर के जो साइंटिस्ट वहां रहते हैं, तो हाँ वो मतलब हाँ एक शायद वो वही थे, मैं कंफर्म नहीं कह सकती। तो उन्होंने वैसा ही क्वेश्चन मुझसे करना स्टार्ट किया। उन्होंने ट्रांसफार्मर का जो कोर है वो बनवाया, और वहां पे वही कि अब यहाँ पे हम करंट वाला सोर्स लगा दे तब क्या चेंजेस आएंगे, वोल्टेज सोर्स लगा दे तो क्या चेंजेस आएंगे। प्लस ये वहां पे ट्रांसफार्मर हमारी शॉर्ट सर्किट टेस्ट और ओपन सर्किट टेस्ट होते हैं। तो वहां से भी ये क्वेश्चन आया था कि फ्लक्स डीमैग्नेटाइज होगा या नहीं होगा, दोनों ही केस में मुझे बताना था। तो मैं काफी ज्यादा उस वक्त मैं कंफ्यूज, बहुत ज्यादा, वो कर ही देते हैं, हम कुछ भी करें वो कंफ्यूज कर ही देते हैं। तो एट लास्ट ऐसा हो गया था। फिर मतलब मैं नहीं आंसर कर पाई थी एट दी एंड में, एग्जैक्ट तो मैं नहीं करता, मैं बोल पाई थी, बस लास्ट में मैंने ये बोल दिया था कि सर ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल होता है कि ये नहीं चेंज करता, तो मेरे हिसाब से नहीं होगा। फिर बाद में जो बाकी के लोग थे उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ठीक है आप जाने तो, ज्यादा डिटेल में मत जाओ। और फिर मैम पे क्वेश्चन आया कि उन्होंने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से पूछा। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में ये पूछा कि जो घरों में इन्वर्टर यूज होते हैं उनकी रेटिंग कैसे डिसाइड होती है, और प्लस ये इन्वर्टर से जो लोड लगा रहे हैं उनके बेसिस पे होती है, इन्वर्टर की अलग रेटिंग होती है। तो इसका भी मुझे डिटेल में कोई ज्यादा आइडिया था नहीं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे बेस्ड था और मैंने अभी तक ऐसा एक्सपीरियंस किया नहीं था। तो जस्ट ठीक है, मैंने मतलब नो बोल दिया और ज्यादा इस पे स्टोरीज नहीं बनाई कि ऐसे ऐसे होता है। और फिर एक नया सब्जेक्ट आया, इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट से एक मैम थी, उन्होंने पूछा कि जो सीटी और पीटी होते हैं, करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, इनका प्रिंसिपल क्या होता है, क्यों यूज होता है, तो वो सब मैंने एक्सप्लेन किया। और ट्रांसफार्मर कौन से पॉइंट पे हम ऑपरेट कराते हैं, तो नी पॉइंट पे ऑपरेट कराते हैं, और ये पता कैसे चलता है कि नी पॉइंट आ गया, तो मैंने ग्राफ से बता दिया कि जो इंडक्टेंस है उसकी जो स्लोप है, अगर जब वो लो होने लगती है तब हम समझ जाते हैं कि वो नी पॉइंट पे आ चुका है। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा सेंसर्स के बारे में, तो वो इंस्ट्रूमेंटेशन वाली जो ब्रांच होती है उससे रिलेटेड था।
तो मुझे वो बेसिकली मतलब बिल्कुल नहीं आता था, तो मैंने ये बोल दिया कि मैम ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है, तो मुझे थोड़ा स्माइल भी करने लगे कि ये क्या होता है। बट ठीक है, उन्होंने मतलब समझ गए, तो यही था, इस तरह से एंड हुआ। अप्रोक्सीमेट 40 मिनट्स लगे और फिर खत्म हो गया। चलो, तो आपको लग गया था कि आपका अच्छा गया है? मतलब मुझे दोनों से एक्सपेक्ट तो मैंने किया नहीं था, मतलब मेरा जो मेरा बेस्ट था वो मैंने दिया। मैं उम्मीद नहीं कर रही थी रिजल्ट का, और मैं इतना सोच भी नहीं रही थी, ओके, पर जब देखा कि हो गया दोनों में तो चलो तब great. एक था ही अलग। अच्छा नेहा, since I have got the opportunity to interact with you and you have got healthy experience of interviews, तो मैं ये भी पूछूंगा कि आपका जो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और गेल है उसमें कैसा गया था भाई, बिकॉज ये दोनों ही पब्लिक सेक्टर हैं। अब बीएआरसी में देखा जाए तो वो बिल्कुल रिसर्च क्वेश्चन पूछते हैं, एनपीसीएल में थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल आपसे पूछ लिया, जैसे उन्होंने वोल्टेज वगैरह का जो आपने बताया कि वो वैल्यूज भी पूछ ली। अब चलते हैं इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और गेल, प्लीज शेयर विद अस, क्योंकि मेरे हिसाब से वहां पे एचआर क्वेश्चन भी रहे होंगे, तो ईएएल और गेल में कैसा था आपका? ब्रीफली इफ यू कैन टेल अस दैट आल्सो। सर ईआईएल में ऐसा था कि मेरी ट्रेनिंग थी वो वहीं हो रखी थी, वोकेशनल ट्रेनिंग ईआईएल में थी, और ईआईएल का मैं इंटरव्यू देने जा रही थी, तो ये एक प्लस पॉइंट मेरे पास ऑलरेडी था। तो यस। यही था कि जो इसी वजह से एचआर क्वेश्चन मुझसे ज्यादा नहीं पूछे गए। उन्होंने बस यही पूछा कि जो ईआईएल में इलेक्ट्रिकल का काम होता है वो क्या होता है आपके हिसाब से, तो वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। और फिर मुझसे जो सारे क्वेश्चन पूछे गए वो ट्रेनिंग के ही पूछे गए, कि वहां पे आप केबल के बारे में बता दीजिए। जैसे मेरी केबल के ऊपर बेस थी, तो केबल का क्रॉस सेक्शन मुझसे बनवाया पूरा। उसके बाद ये था कि मुझसे वहां पे जो सिंगल लाइन डायग्राम जो मैंने वहां पे स्टडी किया था ट्रेनिंग के टाइम पे, वही मुझे वहां पे दोबारा बनाना था। तो उसपे ये सारे फीडर्स वगैरह कितने वोल्टेज लेवल पे दिए हुए हैं, और जस्ट वही मतलब ऊपर ऊपर से थोड़ा सा बताना था, इतना डिटेल में हमें नहीं जाना था। तो उसी के ऊपर सारे क्वेश्चनिंग हुई, और ईआईएल का ज्यादा लंबा नहीं चला, मैं मैक्स टू मैक्स 20 मिनट शायद चला होगा। तो इसी में ट्रेनिंग में ही ऑलमोस्ट सारा टाइम निकल गया सर, इसमें वहां पे ज्यादा कितने लोग इतना बैठे थे डिटेल में नहीं। ईएएल में? इंटरव्यू में कितने लोग बैठे थे ईआईएल उसमें? में शायद 6 या 7 होंगे शायद, अच्छा, 6-7। तो क्योंकि आपने वहीं पे ट्रेनिंग किया था तो सारा इंटरव्यू उस डायरेक्शन में चला गया। हाँ बिल्कुल, वो उसी डायरेक्शन में था, उसके अलावा कहीं नहीं। ठीक है, व्हाट अबाउट गेल नेहा? गेल का मेरा ये था कि बिल्कुल अच्छा तो नहीं हुआ था। मतलब मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही उसका रिजल्ट। उसमें हुआ ये था कि जो मेरा लास्ट वाला इंटरव्यू गेल का ही था, तो जाते जाते तो ऐसा हो गया था कि मैं बहुत ज्यादा थक गई थी, मेंटली बहुत ज्यादा थक गई थी, देते देते लगातार हो रहे थे। तो वहां पे जस्ट क्वेश्चनिंग यही स्टार्ट हुई कि आप गेल के बारे में क्या जानते हैं, तो मैंने वो बताया कि हाँ गेल ऐसे ऐसे काम करता है। उसके बाद जैसे मैं जयपुर से हूँ, तो कि गेल की जयपुर में भी ब्रांच है या नहीं, तो मैंने बता दिया कि सर हाँ मैंने गेल की जयपुर में ब्रांच है, पर डिटेल मुझे नहीं पता, डिटेल मैंने सर्च नहीं की थी। उसके बाद ये कि प्रैक्टिकल में जो ट्रांसफार्मर में जो बकवास रिले होती है उसका क्या काम होता है, और फिर उसके बारे में बताया। और उसकी कंस्ट्रक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन थे कि कंस्ट्रक्शन में मटेरियल कौन सा यूज करते हैं ट्रांसफार्मर का, इस तरह से था। और लास्ट में जब मैं प्रैक्टिकल को मतलब ट्रेनिंग बेस्ड जो क्वेश्चन मानू, तो ट्रेनिंग पे आए थे, मेरी आईओसीएल में एक ट्रेनिंग थी, तो उस पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा था मुझसे। जो बूस्टिंग पंप स्टेशन था वहां से क्वेश्चनिंग मुझसे हुई थी। और ईआईएल में जो केबल साइजिंग थी वहां से भी उन्होंने पूछा था। केबल में ये पूछा था कि जो केबल की अर्थिंग होती है वो कितने टाइप की होती है, अनर्थ केबल भी होती है, और उनको ग्राउंडिंग करके भी हम यूज करते हैं, तो उन्हीं सब पे था। और बेसिकली इसी तरह से सर हुआ, मतलब उसका भी ज्यादा लंबा मैं नहीं कहूंगी, वो 25 मिनट्स अप्रोक्स इतना हुआ था गेल का। लेकिन आपको पता लग गया था कि आपका ठीक नहीं जा रहा है, यू आर नॉट वेरी हैप्पी विद हाँ गेल। गेल का तो मैं समझ गई थी कि हाँ गेल का नहीं हुआ है सही, क्योंकि जो वो क्रॉस क्वेश्चन कर रहे थे वो मुझसे मतलब ऐसा हैंडल मैं नहीं कर पा रही थी एट लास्ट। और जो बेसिकली उन्होंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन में इंक्लूड किए थे कि डीसी ज्यादा खतरनाक होती है या एसी ज्यादा खतरनाक होती है, हालांकि वो मैंने सही बताया था कि एसी ज्यादा खतरनाक होती है, बट उसका रीजन भी एक्सप्लेन करना था, जो रीजन मैंने बाद में आके पढ़ा कि क्या है क्या नहीं है। तो इस तरह से हुआ। सो नेहा, अगर मैं अब आपको बोलूं कि इनका डिफरेंस को समराइज करो कि डिफरेंस क्या होता है इंटरव्यूज में, किसी को बताना हो कि पब्लिक सेक्टर के इंटरव्यूज और बीएआरसी और एनपीसीएल के इंटरव्यू में मेन डिफरेंस क्या है, तो कैसे आप सिंप्लीफाई करेंगे इसको? व्हाट इज द डिफरेंस? सर डिफरेंस ये है कि जो पीएससी के इंटरव्यू होंगे ना, उनमें तो बस सबसे ज्यादा फोकस ये रखना है कि जो ट्रेनिंग आपने की है उससे वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे, तो उन्हें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके लेके जाओ।
और जो BARC और NPCL के थे उसमें कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने चाहिए। स्ट्रांग भी ये नहीं कहूंगी, कुछ नया नहीं पढ़ना होता, बस ये एकदम बेसिक से हर एक चीज का रीजन अपने पास होना चाहिए कि हम ये क्यों कर रहे हैं। और जो बेसिक प्रिंसिपल होता है वो तो दिमाग में हमेशा रहना ही चाहिए, क्योंकि वो बहुत बार ये कोशिश करते हैं कि हम बेसिक प्रिंसिपल से हट जाएं, और यही एक हमारा वीक पॉइंट आ जाता है कि जो भी वहां पे हट जाता है बेसिक प्रिंसिपल से और उनके जो ट्रैप में फंस जाता है, एक तरह से क्वेश्चंस का ट्रैप जो वो करते हैं, तो वही चीज नहीं करनी होती है। हमें अपने बेसिक्स पे रहना होता है, उन पे स्ट्रांग बने रहना होता है कि हाँ ये पढ़ा है तो यही सही है। ये BARC में मैं कहूंगी। That is wonderful, Neha. So it's a great thing. You got 2 selections and 2 results are awaited, Neha. इसके अलावा और तो कोई अभी कॉल नहीं आया है आपको या कहीं और से? You're not expecting? नहीं सर, अभी तक कॉल नहीं आया है। IOCL और पोस्टो को भी मैंने अप्लाई कर रखा है, बट उनकी इंटरव्यू डेट्स अभी आई नहीं है, और DRDO में भी मैंने अप्लाई किया हुआ है, बट उसका भी सेम ये। चलो, that is great. So when is the joining for you, Neha? सर BARC में मेरी ज्वाइनिंग है 8 अगस्त को, और NPCIL में है कि 27 को मेडिकल है, वहाँ पे मेडिकल टेस्ट है। ओके। सो नेहा, वैसे तो आपने सारा डिटेल में बताया है स्टूडेंट्स को, एंड आई एम वेरी श्योर वो सुनेंगे और उनको बेनिफिट रहेगा इसमें, इस तरह का क्वेश्चन है। बट लास्ट पॉइंट फ्रॉम योर साइड, अगेन एनी एडवाइस यू वांट टू गिव टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर लिसनिंग टू यू? सर मैं यही कहूंगी कि अगर PSUs और साइंटिस्ट जो रिसर्च बेस्ड जो इंटरव्यूज होते हैं, अगर दोनों क्रैक करना चाहते हैं तो यही है कि जो भी आप पढ़ रहे हैं, जैसे भी आप पढ़ रहे हैं, बस हर एक चीज का जो बेसिक्स है वो चले, एकदम जीरो से स्टार्ट करें, और हर एक कॉन्सेप्ट का रीजन हमें पता होना चाहिए रिसर्च बेस्ड इंटरव्यूज में। और जो PSUs के इंटरव्यू है, जो ट्रेनिंग जो भी आपने की है उसका नॉलेज बेसिकली आपको एटलीस्ट वो जो प्लांट है वो विजिट किया हो, क्योंकि वो पूछते हैं कि आपने वहाँ एक्चुअल में गए हो या नहीं गए हो, तो और वो समझ भी जाते हैं कि एक्चुअल में इसने काम किया है कि नहीं किया है। तो वहां पे अगर ट्रेनिंग ठीक से नहीं की हुई है तो उसे शो नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली वो चेक करेंगे कि नहीं की हुई है ट्रेनिंग। ब्लफ नहीं मारना चाहिए, ऑनेस्ट है वही ऑनेस्टली बताते जाओ। हाँ चलो नेहा, आई एम रियली थैंकफुल फॉर द टाइम यू गेव मी, और बहुत डिटेल में आपने सारा हमें बताया, और ये स्टूडेंट्स सुनेंगे इस सारे इंटरव्यू को और उनको पता भी चलेगा कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउ एट द एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जो भी आप ज्वाइन करें जॉब्स, अब क्योंकि आपके पास काफी जॉब्स हैं, तो जो भी आप ज्वाइन करें, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट इन योर करियर। थैंक यू नेहा। थैंक यू सर।